इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था राउंडेड ऑफ टेंस, राउंडेड ऑफ 100, राउंडेड ऑफ 1000। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को उस राउंडेड नंबर्स में लिख करके सम करना है, एस्टिमेटिंग द सम, यानी कि जो नंबर्स होंगे उनको एस्टिमेट करने के बाद सम करेंगे। आपका क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम 64 plus 79 to the nearest 10. So first of all we convert into nearest 10 of 64 and 79. Then after we sum. सबसे पहले हम लोग 64 और 79 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद दोनों को एस्टिमेशन सम करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ईयर 64 is estimated to the nearest 10 is equal to 60. Why 60? Here 64 is 2-digit number and here unit place is 4 and 4 is less than 5. 4 is less than 5, so 6 not increase. Here 6 is 6 and replace of 4 is equal to 0. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ज्ञात चुका है आपको कि 64 है, यहाँ पर 4 जो है 5 से छोटा है, यही कारण है कि ज्यों का त्यों 6 का 6 रहेगा और इसके बदले में 0 हो जाएगा। Similarly 79, here 79 and its unit place is 9. 9 is more than 5. 9 is more than 5. So here 7 increased by 1 and replace of 9 is equal to 0. So here nearest 10 is 80. So 79 is estimated to the nearest 10 is equal to 80. And then after, hence we write, hence the required estimation is equal to 60 plus 80 is equal to 140. Similarly, now we see next example. Okay. Here now next example. Estimate the sum. Estimate the sum 267. 267 प्लस और कोई बोलिए नंबर ले लेते हैं हम लोग 132. 132. So now to the nearest 10. To the nearest 10. इसको हम लोग नियरेस्ट 10 बनाते हैं, ऐड करना है, सम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसको 267 एस्टिमेटेड to the nearest 10 is equal to 267. 267, here unit place is 7 and so here 7 is more than 5, so here 6 increased by 1 and the place of 7 is equal to 0. So here 10 nearest 10 is 270. 6 के बदले 7 और इसके बदले 0, ये तो जो का तो रहा, क्योंकि हमको नियरेस्ट 10 ही देखना है, हमें सिर्फ यहीं से मतलब है। ओके। सिमिलरली 132 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 132 को 132 here 2 is less than 5, so 3 is no change, only 3 is 3 and the place of 2 is equal to
0. So here 132 estimated to the nearest 10 is equal to 130. Okay? And now you can write, hence the required estimation is equal to 270 plus 130 is equal to 400. That's your answer. इस तरह से हम लोग इसको नियरेस्ट 10 करके ऐड कर देते हैं. Estimating the sum to the nearest 10. Similarly, इसी तरह हम लोग नियरेस्ट 100 करेंगे. ओके, तो चलिए नियरेस्ट 100 करके बनाते हैं. ठीक है, इसी को नियरेस्ट 100 बना देते हैं. ओके, to the nearest estimated the sum 267 plus 432 to the nearest 100. To the nearest 100. Solution: 267 estimated to the nearest 100 is equal to 267 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? 267. तो 267 का नियरेस्ट 100 चेक करने के लिए हम लोग इस 6 को चेक करेंगे, टेंस प्लेस को. Here 6 is more than 5, so 2 increased by 1, and here nearest is 300. Right now, so write here 300. Similarly, 432 estimated to the nearest 100 is equal to 432 का हो जाएगा 432, and here 3 is less than 5, so here no change. 4 is no change, and here 4 is also 4, and in place of 32 is equal to 0, 0, and here is 400. Okay, now hence the required estimation is equal to 300 plus 400 is equal to 700. Okay, and that is your answer. ठीक है, ये आपका हुआ एस्टिमेटिंग द सम. इसी तरह से हम लोग एस्टिमेटिंग द सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे. ओके, एस्टिमेटिंग द सब्ट्रैक्ट. ठीक है, आगे बताऊं. नेक्स्ट,
देखिए, subtract, changing the subtract 95 minus 36. Our question: estimate the subtract 95 minus 36 to the nearest 10. Here, solution में 95 estimated to the nearest 10 and 36 estimated to the nearest 10. Okay. Now 95 का nearest 10 क्या होगा? 95 here 5 is equal to 5. So 9 increased by 1 and here is 10 and this is also 0, 100. This is the 100. And 36 here 6 is greater than 5 and so 3 is also 4 and the place of 6 is equal to 0 and here is 40. And now hence the required estimation is equal to 100 minus 40 is equal to 60. And that is your answer. Now for next example, in this, estimate the difference. Example, estimate the difference, estimate the difference 673 minus 258 to the nearest 100. To the nearest 100. ओके, चलिए इसी पर उसको सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन हियर 673 estimated to the nearest 100 is equal to 673 का नियरेस्ट 100, 673 का नियरेस्ट 100 को चेक करने के लिए टेंस प्लेस को चेक करेंगे. या टेंस प्लस 7 इज ग्रेटर देन 5, सो या 6 इंक्रीज्ड बाय 1 and the place of 23 equal to 00. And here 673 estimated to the nearest 100 is equal to 700. Right now, again 258 estimated to the nearest 100 is equal to 258, and here 5 is equal to 5, and so 2 increase is 3 and the place of 58 is equal to 00, and so here is 300. Okay. Hence
the required estimation. Here the required estimation is equal to 700 minus 300 is equal to 400 and this is the answer. उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे. सो अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे आपको बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा, काफ़ी हेल्प होगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे. ओके, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को एस्टिमेटिंग द सम और एस्टिमेटिंग द सब्ट्रैक्ट के बारे में अभी तक बताया. और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. मैं आपको बताने जा रहा हूँ एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट. एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट क्या होता है? एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले जैसे हम लोग पहले नियरेस्ट 10 निकालकर हम लोग ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, डिफरेंस निकाले, उसी तरह से इसको भी करेंगे. क्वेश्चंस. एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 58. 42 और 58 का प्रोडक्ट करना है एस्टिमेट करके. 42 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10. 42 का नियरेस्ट 10 40. वाई नियरेस्ट 10 बोला है? नियरेस्ट 10 करने का मतलब हो गया कि उसके नियरेस्ट 10 बताना है. मीन्स हियर यूनिट प्लेस इज 2 and 2 is less than 5, so here no change, and 4 is 4 and replace of 2 is 0. So here 42 is the rounded of is 40. 42 का जो राउंडेड होगा कितना होगा? 40. सिमिलरली 58 का जो राउंडेड होगा नियरेस्ट 10 होगा. Here 8 is greater than 5, so 5 is increased by 1 and it becomes 6, and replace of 8 is equal to 0. So here 58 estimated to the nearest 10 is equal to 60, and hence the required estimation means product is equal to 40 multiply 60 is equal to 6, 4, 24 and 2020. Similarly, let us now see next example. Okay. Example 2. Estimate the product of 367 and 231 by rounding off each number to the nearest 100. कहने का मतलब यह हो गया कि जो नंबर दिया गया है इन सभी ईच नंबर को यानी प्रत्येक नंबर्स को नियरेस्ट 100 के रूप में लिखना है. उसके बाद हमें प्रोडक्ट करनी है. ठीक है, बस केवल ध्यान इतना ही रखना है कि यहाँ नियरेस्ट 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा नियरेस्ट 100. क्योंकि यहाँ तो 2 डिजिट है, यहाँ तो 2 ही डिजिट है ये था, इसीलिए यहाँ पर ओनली 10 ही होगा और वहाँ पर कुछ नहीं होगा. हाँ, 2 के बाद 3 आता तो फिर यहाँ कंपल्सरी 100 होगा. ठीक है, लेकिन या 10 से भी हो सकता था, लेकिन 2 ही डिजिट है, इस 10 से और कुछ नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है. इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ क्लियर किया कि नियरेस्ट 100. इसको सोल्यूशन करेंगे. 367 estimated to the nearest 100 is equal to nearest 100. Here
हो जाएगा इसका 400. Why? Here tens place is 6, so increase 3 by 1, and in place of 67 is 00, and similarly 231 estimated to the nearest 100 is equal to 200 is equal to 200, because here 3 is less than 5. So estimated the required estimation, लिखेंगे the required estimation is equal to 400 multiply 200 is equal to 4 to the 8, 1 2 3 4 0 80,000. ओके, अभी हम लोग देखेंगे एस्टिमेटिंग द क्वोशंट्स. क्वोशंट्स मीन्स डिवाइड. क्वोशंट मीन्स डिवाइड यानी भागफल, यानी जो डिवाइड करने पर जब कोई टर्म पूरे पूरे कट जाता है तो उसको हम लोग क्वोशंट बोलते हैं. ओके, यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटिंग द क्वोशंट समझेंगे अच्छी तरह. क्वेश्चन है फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे दिया गया है उसका एस्टिमेटेड क्वोशंट निकालें. फर्स्ट क्वेश्चन 627 डिवाइडेड 23, दोनों का अलग अलग हम निकालेंगे राउंड फिगर में, तो यह 627 का क्या आएगा? ओके, तो 627 का एक्सप्रोमेटली यह आता है 600. क्या आता है? 600. 23 का आएगा 30. 23 का 23 का आ जाएगा 20. अब आप ये पूछेंगे कि सर यहाँ तो न टेंस दिया हुआ है न 100 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 600 कैसे आया? तो सबसे बड़ी बात यह है, डिवाइड में देखना जब पड़ता है कि वह जो डिजिट है कितने डिजिट का है. तो जितने डिजिट का होगा, ठीक है, अगर मान लिया जाए ये 3 डिजिट का है तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसको निकालेंगे 100 प्लस. क्या निकालेंगे? 100 को, और 100 को 100 प्लस मेरा कहाँ है? यहाँ है. 100 प्लस को निकालने के लिए चेक करेंगे इसको 2 को, टेंस प्लस को. इसको चेक करेंगे टेंस प्लस को, तो यह जो है लेस देन 5 है, अतः यह 6 का 6 ही रह गया और 2 डिजिट के बदले 2 0. अब जितना डिजिट रहेगा, जितना डिजिट का रहेगा, अगर 1000 का रहेगा तो 1000 चेक करेंगे, 10,000 तक रहेंगे तो 10,000 तक चेक करेंगे, जितना मैक्सिमम रहेगा उस पूरे को लिस्ट देखेंगे. जैसे सपोज यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, 23 ओनली, ये 23, सो हियर ओनली टेंस, नियरेस्ट 10. 3 है तो 100, 4th रहेगा तो 1000 चेक करेंगे. ओके, ठीक इसी तरह 627 का यहाँ हो गया 600 और 23 का 20, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कितना भी नियरेस्ट पढ़ा, सम में, सब्ट्रैक्ट में, प्रोडक्ट में, अब कोई परेशानियां नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ये हो गया 600 डिवाइडेड 20. डिवाइड करेंगे सिंपली तो 30 आएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सिमिलरली 985, यहाँ भी 3 डिजिट्स है, तो 100 प्लस को चेक करेंगे. 100 को चेक करने के लिए टेंस प्लस को देखेंगे,
here more than 5, so 9 becomes 10 and replace of 85 is 0 0. ये हो गया 10 और ये हो गया 2 अंक के लिए 0 0. And 48 2 digits, so 48 to the nearest 10 is 50, and so 1000 divided by 50 is equal to 20. Similarly here, next example, 74 divided 34. 74 divided 34, and here 74 to the nearest 10, because here is 2 digits, so nearest 10, and 74 is 70, and 34 to the nearest 10 is 30. And so we divide 70 divided by 30, and 0 0 is cut, remains 7 by 3, and we divide 7 divided 3, so we check 3 से 7 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ 1 0, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर पॉइंट लगेंगे, पॉइंट लगने के बाद 3 3 जा 9, यहाँ पर नंबर्स रिपीट होंगे, फिर 0 आएंगे, फिर 3 3 होंगे. इस तरह से हम लोग देखेंगे तो 3 3 होते जाएगा. यह जो है, इस जो डिजिट है, यहाँ जो डिजिट है, एंड दिस डिजिट इज लेस देन 5. दिस डिजिट इज लेस देन 5, so 2 is no change. Only 2 is 2, and so 7 divided 3 is approximately equal to 2. Similarly, now just next example, 694 divided 58 is approximately equal to 700. 694 to the nearest 100 is 700, and 50 is to the nearest 10 is equal to 60, and 700 divided by 60 is equal to 70 divided 6, and we divide 70 by 6, 1 0 1 4 remainder 0 6 6 36, and here you see here 2.3, and 3 is less than 5, and here 6 is greater than 5. Okay, here 3 is less than 5, and 6 is greater than 5. So 11.6 becomes approximately 12. So which is approximately equal to 12. Okay, this is your the estimating the quotient. इस तरह से आप लोग इसके सिमिलरली जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, एक्सरसाइज में होंगे, बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, हम यही उम्मीद करते हैं. और इसी उम्मीद के साथ ये आपका एस्टिमेटिंग का जो एक्सरसाइज है वो समाप्त होता है. थैंक यू, धन्यवाद.